Hello everyone. I hope you people are happy, healthy and safe. Today I am going to start your cost accounting next chapter, that is material documentation of TYBCom Sem 5. In material documentation we will discuss all the documentation related to the material costing. And first I am introducing myself. I am Professor Zakira Matavankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor of Accountancy Department, and today I am going to start your material documentation chapter. First is I am discussing with the introduction. Here it is very important that proper storage of material is very much necessary for production planning. After receipt of material, it has to be examined properly and kept at a proper place, which is known as storeroom. Storekeeping is a service function and the storekeeper is a custodian of all the store. So proper storage is must of every material which we bring from the market for the production purpose. And when we got this material, we have to collect the material receipt and we have to examine, inspect the properly and store in the storeroom, that is you can say go down also. And this is very important function. The person who are taking care all the stock in the store, it is called a storekeeper. So I just discussed you the Alford and Beauty who give the definition of storekeeping is that aspect of material control concerned until the physical storage of goods. Similarly, Knowles and Thompson describe the storekeeping, the connecting link between the planning and the production department and the shops. See, here again he is discussing that is a link between planning and production. First we have to plan what we have to bring from the market, and of course these material are necessary for the production purpose. So that's why it is very important we have to collect this material from the shops. Part and material move through it such as money moves into in and out of the commercial department of the bank. Thus, the storekeeping may be described as physical storage of the material in a scientific manner in order to save it from all types of damage and losses and exercising an overall control over its movement. So, storekeeping is nothing but this is the physical storage, means we have to store our material in a store, or you can say in a go down, to keep it away, or you can say we have to save it from all types of damage and losses, and we have to take a control or overall control over its movement. मीन्स सपोज अगर हम मटेरियल को जो है हमारे स्टोर में या गोडाउन में स्टोर करते हैं, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए हमको कितना सप्लाई करना है, ये जो है स्टोर कीपर का मेन फंक्शन होता है. स्टोर कीपर जो है वो पूरा ध्यान रखता है कि हम इस तरह से स्टोर करें कि कोई तरह का डैमेज या लॉस ना हो. So that is why it is very important function, because material control is of course save your cost of production. Then the next is I am first discussing the forms of documentation used in stores. So this is actually the process, and according to that process the store keeper, or you can say the creditors, issuing the document, and which document is belongs to what purpose I am discussing here. First document is purchase requisition. This is prepare the different department to show their total requirement and send the same to the purchase department. हर एक डिपार्टमेंट जो है उनको अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत होती है. जैसे फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो होता है वो बताता है कि हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, पैकिंग मटेरियल कौन सा चाहिए, मशीनरी के लिए कौन से लुब्रिकेंट्स चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए. तो ये जो है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग काम दिया जाता है, और उस तरह से वो अपनी टोटल रिक्वायरमेंट देते हैं किसके, परचेज डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर डेट, सीरियल नंबर, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पोस्ट परचेज स्टॉक, ये पूरी तरह की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में होती है परचेज रिक्विजिट में. और ये जो है प्रॉपर साइन किया जाता है ऑथोराइज पर्सन से, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मटेरियल परचेज इंटेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज इन्विटेशन टू द टेंडर. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि बहुत सारे टेंडर जो है उनका 1-2 पेज होता है. सो वो 2 पेजेस जो है हमारे
टेंडर्स जो है अलग अलग क्रेडिटर्स भर के देते हैं और जिनका टेंडर हमारे लिए कंफर्टेबल और प्रॉपर होता है उन्हीं को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो उसी तरह से हम इन्विटेशन टू टेंडर क्या है, द परचेज डिपार्टमेंट इशू टेंडर टू सप्लायर्स एंड पब्लिश देम इन अ न्यूज़पेपर। सी, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो टेंडर देती है कि भाई हमें इतनी इतनी मटेरियल की ज़रूरत है, इसका इतना कॉस्ट है, और सप्लायर्स जो है उनको न्यूज़पेपर के थ्रू इशू किया जाता है ये। और जो हमारे सप्लायर्स है वो कोट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ मटेरियल। द इन्विटेशन ऑफ द सप्लायर इज एक्सटेंडेड टू सेंड देयर टेंडर टू द परचेज डिपार्टमेंट। ये इन्विटेशन जो है सप्लायर्स को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंडर एंड इट अपीयर्स इज एज फॉलो। सी, इसका जो टेंडर का जो फॉर्मेट है आपके सामने है, देखिए इंटेंडेड नंबर भी रहेगा यहाँ पर, टेंडर नंबर भी रहेगा, कितना डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, डिलीवरी डिजायर मीन्स हमें कहाँ सप्लाई करना है, ऑल दिस विल बी अवेलेबल बाय दिस टेंडर। सो दिस इज द फॉर्मेट, ओके, और परफॉर्मा यू कैन से। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर। जब टेंडर फिलअप किए जाते हैं और टेंडर्स को जो है पूरी तरह से फिलअप करके कंपनी को दिया जाता है बाय द डिफरेंट क्रेडिटर्स, सो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस होता है और ये जो है टेंडर रिसीव किया जाता है वेरियस सप्लायर्स के थ्रू। और यहाँ पर जो है कंपैरिजन देखिए इस तरह से किया जाता है, दिस इज द परफॉर्मा। यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर्स दिए जाएंगे, टेंडर कोटेशन, डिस्क्रिप्शन कोटेशन, यहाँ पर डिफरेंट सप्लायर्स के या क्रेडिटर्स के नाम लिखे जाते हैं, उनका प्राइस जो कोट किया गया है, डिस्काउंट, डिलीवरी कब करेंगे, क्रेडिट पीरियड कितना दिया जाएगा, एंड रिमार्क, ये सबको कंपेयर किया जाता है और अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन विच इज मोर बेनिफिटेड टू यू, ऑफ कोर्स उन्हीं को टेंडर मिलता है। सो दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट कोटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर। जब एक सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है उसी के बाद जो है परचेज ऑर्डर किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर अ परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर एंड सेंड टू हिम। वो सप्लायर को या क्रेडिटर्स को जो है ऑर्डर दिया जाता है कि हमें इतने गुड्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर सीरियल नंबर, डेट होता है, नेम होता है, एड्रेस सप्लायर्स का, डिटेल्स होते हैं मटेरियल्स के, कौन से प्लेस है, देन कहाँ डिस्पैच करना है, पैकिंग मटेरियल वगैरह कैसे आएगा, प्राइसेस, टर्म्स ऑफ पेमेंट, सिग्नेचर, और ये कुछ इस तरह से इसका परफॉर्मा होता है। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है इस फॉर्मेट में, यहाँ पर जो मैंने बताई है इस फॉर्मेट में जो है पूरी तरह से होती है। ऑफकोर्स इट शुड बी साइन, और पेमेंट कितना किया गया है सब ऑथोराइज पर्सन, परचेज ऑफिसर की सिग्नेचर होती है यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर भेजने के बाद जब सप्लायर हमको माल हमारे यहाँ पर देता है तो ऑफकोर्स वो डिलीवरी चालान के साथ भेजेगा, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स भेजे हैं। द मटेरियल सप्लाई बाय द सप्लायर अकम्पनी द डिलीवरी चालान। वो जो है अपने जो उसका वर्कर है जिसके साथ उसने माल भेजा है वो उसको डिलीवरी चालान देता है, और डिलीवरी चालान इज प्रिपेयर बाय द सप्लायर। द डिलीवरी चालान इज इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब दो होते हैं एक जैसे ही, और द गुड्स आर चेक्ड एंड कॉपी द डिलीवरी चालान एंड रिटेन द अनदर रिटर्न विद द एक्नॉलेजमेंट। एक जो है वो साइन करके जो हम कंपनी को देता है, वो कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन है उसका साइन एक्नॉलेजमेंट लेके वापस लेकर आता है क्रेडिटर्स के पास कि भाई हाँ हमने डिलीवर कर दिया है। In a computerized setup, the moment supplier receive from the vendor, the information is fed to the computer। ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर में फीड की जाती है, और ताकि हमको उसका पूरा स्टेटस जो है पता चले। और यहाँ पर जो है देखिए ये इसका परफॉर्मा है, ये कुछ इस तरह से दिखता है आपका प्रोजेक्ट कि उसका डिस्क्रिप्शन, कौन सा गुड्स है, कितनी क्वांटिटी, और उसका रिमार्क। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है मटेरियल इंस्पेक्शन नोट। जब मटेरियल हमारे कंपनी में आ जाता है तो ऑफकोर्स हम ऐसे ही नहीं ले लेंगे, हमको इसको पूरी तरह से चेक करना पड़ता है बाय इंस्पेक्टर ऑफिसर, या जैसे इंस्पेक्शन ऑफिसर रहता है जिसको उसको इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो ये जो है मटेरियल इंस्पेक्शन नोट क्या होती है। द गुड रिसीव में और मे नॉट नीड द इंस्पेक्शन, इट्स डिपेंड कि हमारा जो क्रेडिटर्स है हमारे उससे क्या रिलेशन है, वो कैसा है, भरोसे के लायक है कि नहीं, लेकिन फिर भी दैट्स बेटर कि हमको पूरी तरह से इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि किसी तरह से कोई लॉस हम फेस ना करें। इंस्पेक्शन में भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और अदर अप्रूव लेबोरेटरी। केमिकल इंडस्ट्री है जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें ऑफकोर्स इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एनी मिस्टेक ऑफकोर्स वी have to pay more and we have to suffer more. So that's why inspected, if the goods are to be inspected by the outside agency, the report from such agency should be obtained. हम अगर बाहर से कहीं पर इंस्पेक्शन करा रहे हैं तो वहाँ की हमको रिपोर्ट चाहिए कि whether goods are proper or not। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो इंस्पेक्शन नोट जो है फॉरन
बना दी जाती है एंड फॉरवर्डेड टू द स्टोर डिपार्टमेंट। गोडाउन में फॉरन जो है स्टोर डिपार्टमेंट को आ जाती है कि वेदर दिस गुड्स आर प्रॉपर और नॉट। ये देखिए हमारा इंस्पेक्शन नोट का जो है पूरी तरह से फॉर्मेट मैंने दिया है आपको। उसमें सीरियल नंबर है, इसके डिस्क्रिप्शन, स्टोर कोड, क्वांटिटी कितनी है, कितनी एक्सेप्ट, अगर कुछ हमको फॉल्ट लगता है या कुछ माल सही नहीं लगता हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने का रीज़न भी हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मटीरियल रिसीव नोट। जब हम इंस्पेक्ट करके हमारा गुड्स जो है गोडाउन में बेचते हैं तो स्टोर डिपार्टमेंट का जो स्टोर कीपर होता है वो जो है गुड रिसीव करता है। द स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ स्टोर रिसीप्ट नोट फॉर द स्टोर एक्सेप्टेंस। आफ्टर इशू दिस स्टोर द रिसिप्ट द स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोर। जब भी वो गुड्स रिसीव करता है तो जो है सामने वाले को एक रिसिप्ट देता है कि हाँ मैंने ये जो है गुड्स जो है मैंने अपने स्टोर्स में एक्सेप्ट किया है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एंड नाउ ही इज अ रिस्पॉन्सिबल। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट फॉर पोस्टिंग द रिसिप्ट इन अ बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। यहाँ पर जो है वो बिन कार्ड या स्टोर लेजर में एंट्री करता है कि भाई इतना माल आया विद द प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड इट इज़ प्रिपेयर इन द क्वाड्रो डुप्लीकेट। मतलब यहाँ पर जो है क्वाड्रो मतलब यहाँ पर जो ये 4 कॉपी होती है, इसकी 4 कॉपी होती है। 1 कॉपी इज रिटेन बाय स्टोर, स्टोर अपने पास रखता है 1 कॉपी। दूसरी कॉपी जो होती है 1 कॉपी सेंड टू सप्लायर, क्रेडिटर्स को दी जाती है जिसने माल भेजा है हमको। तीसरी कॉपी जो है स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन में दी जाती है ताकि अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपर हो एंड परचेस डिपार्टमेंट में की जाती है कि भाई हमने आपसे परचेस का ऑर्डर दिया था तो आपका ये जो है हमारा माल जो है इतना यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। See, this is the performer of store receive note, ठीक है। सो ये जो है हमारा परफॉर्मा है। देन बिन कार्ड। व्हाट इज अ बिन कार्ड? बिन कार्ड विच प्रोवाइड अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ स्टोर। हमारे पास जितना भी स्टॉक आता है और हम अपने गोडाउन में स्टोर करते हैं उसका कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखा जाता है। इट इज लाइक अ लेजर विच अटैच टू ईच बिन। हर एक बिन में जो है इसका जो है पूरी तरह से इंफॉर्मेशन इस बिन कार्ड में लिखी जाती है और उस पर स्टिक कर दिया जाता है इसे। इट एक्ट लाइक अ रेडी रेफरेंस एंड हेल्प द स्टोर कीपर टू परफॉर्म अ ड्यूटीज एफिशिएंटली। अगर यहाँ पर जो है स्टोर कीपर को इस बिन कार्ड से काफ़ी हेल्प हो जाती है और ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देता है पोजीशन ऑफ ईच आइटम के कौन सा माल कहाँ रखा हुआ है। दिस इज द बिन कार्ड परफॉर्मा। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट नंबर, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, रिमार्क, ये सब हमको पता चलता है इससे। नेक्स्ट इज store ledger. Of course this store ledger we did FY Bcon and this year of course in the next chapter we will do the calculation of store ledger account. So store ledger actually क्या होता है? The store ledger is the ledger of material similar to the ledger under financial accounting. यहाँ पर हमको पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना गुड्स हमारे पास गोडाउन में आया और हमको कितना इशू करना है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए। सो एवरी मूवमेंट ऑफ मटीरियल वी शुड रिकॉर्ड हियर विद द क्वांटिटी एंड द वैल्यू। जो है हमने फीफो और वेटेड एवरेज मेथड किया था और उसमें जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो स्टोर लेजर में ही किए जाते हैं। एंड सी दिस इज द परफॉर्म ऑफ द स्टोर लेजर। आई होप यू पीपल रिमेंबर दिस। दिस इज अ रिसिप्ट कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, सेम कॉलम, बैलेंस। सो कितना माल आया, कितना हमने इशू किया और कितना बच गया है हमारे पास, इसमें सब इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर आ जाती है। देन द नेक्स्ट इज मटीरियल रिक्विजिशन। This note is prepared by the production department for the issue of material from the store as and when required. ये जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये इशू करता है हमें जितने भी मटेरियल की ज़रूरत है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। हमको जब भी ज़रूरत होती है तो ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स इश्यू की जाती है कि भाई हमें बिन कार्ड नंबर जो दिया जाता है ये मटेरियल का इतने रेट का इतने अमाउंट का जो है हमको इतनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए। यहाँ पर इसका रिमार्क होता है, प्राइसेस, स्टोर कीपर का जो है साइन वगैरह सब लगता है। तो इट इज़ अ प्रॉपर ऑथराइज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज 11.1 बिल ऑफ मटीरियल। What is a bill of material? This document gives us specification of material required by a job. Job means a thing which we have to produce a product. मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं वो उस पूरे प्रोसेस को जो है जॉब कहा जाता है। सी इट इज़ अ बाय अ जॉब और प्रोसेस और अ सर्विसेज। जिस भी काम के लिए हम जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसको जो है
इसमें मेंशन किया जाता है. इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ अ जॉब एंड दिस इज द परफॉर्मा. यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, कोड नंबर, टाइप, क्वांटिटी, क्वांटिटी इन स्टॉक, क्वांटिटी एक्सपेक्टेड मतलब हमको कितनी ज़रूरत है, स्टॉक में कितना है और कितना एक्चुअल लगेगा, और क्वांटिटी कितनी इशू की गई है स्टोर से, बैलेंस हमारे पास कितना बचा, डिलीवरी कब की गई है, और रिमार्क इफ एनी वी हैव टू राइट इट. ओके, देन मटेरियल रिटर्न नोट. हो सकता है कुछ मटेरियल माइट भी स्टोर में रहकर डैमेज हो जाए, और ऐसे मटेरियल जब यूजफुल नहीं रहते तो ऑफकोर्स जो है स्टोर डिपार्टमेंट को इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न कर देता है, जहाँ पर फैक्ट्री का काम होता है या प्रोडक्शन का काम होता है. सो समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू रिटर्न द मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर. यानी फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, अगर जब उनको ज़रूरत नहीं रहती या कुछ डैमेज रहता है तो वापस वो गोडाउन में माल भेज देते हैं, बिकॉज वो उनके कोई काम का नहीं रहता. इट रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ material which are not used. So this is the performa of the material return note. Okay, कि हमने कितनी क्वांटिटी जो है हमने रिटर्न की है, उसका प्राइस क्या था. नाउ द नेक्स्ट इज मटीरियल ट्रांसफर नोट. माइट बी इट इज़ नेसेसरी कि जहाँ हमारे प्लांट जो है अलग अलग होते हैं और प्रोडक्शन जो है अलग अलग जगह पर होते हैं, ताकि माल जो है पूरी हर जगह पर सप्लाई किया जा सके. तो सपोज अगर एक प्लांट में माल खत्म हो गया है तो दूसरे प्लांट में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और माइट बी इट इज़ नियर बाय. और अगर हमारे क्रेडिटर्स के पास माल अवेलेबल ना हो और प्रोडक्शन ना रुके तो इसके लिए जो है मटीरियल एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है ट्रांसफर किया जाता है. तो उसकी भी जो नोट होती है, समटाइम द एक्सेस मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विच इज नोन एज अ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. ठीक है, सो यहाँ पर अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो जाए तो ये क्यों होता है, जब कुछ हमारे पास प्रोडक्ट एक्सेस में हो या सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो. सो प्रिपेयर वन मटीरियल ट्रांसफर नोट शोइंग द डिटेल ऑफ मटीरियल ट्रांसफर. इट इज़ प्रिपेयर इन डुप्लीकेट. 2 कॉपीज़ की रेडी की जाती है. 1 कॉपी सेंड टू स्टोर कीपर एंड अदर कॉपी ऑफ कोर्स इज केप्ट बाय डिपार्टमेंट इटसेल्फ. वो डिपार्टमेंट खुद रखता है और ये है उसका परफॉर्म. ठीक है, so that is a material transfer note. Now 14 material abstract. This is the analysis of material issued against the material acquisition. इसमें यहाँ पर एनालिस किया जाता है मटेरियल्स को जो भी इशू किया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन में. दिस इज डन पीरियोडिकली, मतलब इसका कुछ एक टाइम दिया जाता है, जैसे वीकली, मंथली, इसको जो है एनालाइज किया जाता है. एंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर ईच जॉब कैन बी असर्टेन. यहाँ पर हर इसमें कॉस्ट जो है कैलकुलेट किया जाता है. मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट का देखिए ये इस तरह से प्रोसेस है. दिस इज द परफॉर्मा. एंड द नेक्स्ट इज inventory system. Now all the documents done, I think I discuss all the documents of the inventory documentation, and the next topic is the inventory system. Now what is the inventory system? We done already in the FY BCom. This is just a revision. This is a periodic inventory system where stock is verified only at the end of a certain period. You can say at the end of the year. यहाँ पर जो है आप सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक. यू कैन से एट द एंड ऑफ द ईयर जो है इसको वेरीफाई किया जाता है कि हमारा गुड्स कितना आया था हर महीना या वीकली कितना आया था, और अब एंड ऑफ द ईयर में कितना बचा. इसका डेली बेसिस पे जो है वेरिफिकेशन और क्या चेकिंग नहीं होती है. सो स्टॉक टेकिंग इज डन ओनली व्हेन द एक्टिविटीज आर सस्पेंडेड एंड हेंस स्टॉक टेकिंग शुड बी डन इन द मिनिमम टाइम. और बहुत कम वक्त में जो है इसको पूरी तरह से इसके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है थ्रू द बिन कार्ड, और यू कैन से थ्रू द स्टोर लेजर कार्ड. और इस क्वांटिटी को जो है रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपरली अबाउट द स्टॉक. देन जो है हम इजीली कैलकुलेट करते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक. अंडर दिस मेथड बैलेंसिंग ऑफ मटीरियल इज ऑल्सो डन पीरियोडिकली. ठीक है, पीरियोडिकली ही इसका बैलेंस किया जाता है. द सेकेंड इज कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. In perpetual inventory system, a system of records maintained by controlling the department which reflect the physical movement of the stock in their current balance. ये जो इन्वेंट्री सिस्टम है ये ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम है. ICMA ने जो इसको डिफाइन किया है कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ये जो है कंटिन्यूस जो है इसका बैलेंस जो है करंट बैलेंस प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है. So this is are the two system of inventory system.
And the next is ABC analysis. Now what is a ABC analysis? ABC analysis is a technique through which the selective control can be exercised on the various item of material in the store. देखिए स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम होते हैं और या मटेरियल होते हैं, तो कुछ मटेरियल हमारे लार्ज साइज में होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू पे अ माइन्यूट अटेंशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन अ स्टोर्स. सो इतने सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एक मटेरियल का एनालाइज कर सके और उसको जो है हर चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते. तो इसके लिए मटेरियल को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज A, B, C, and then we have to analyze it. Under this system, various items are classified according to their importance and are selective control exercise. इसको select किया जाता है और उसके importance के हिसाब से जो है इसको A class, B class और C class में जो है इसको bifurcate किया गया है. Under this technique, the measure of control over an item inventory varies its usage value. जिसका जितना usage होगा उसको उतना जो है इसका सेक्शन दिया गया है A, B, C. और किस तरह से दिया गया है मैं आपको बताती हूँ. Under ABC analysis, the different item are classified into number of categories. जैसे फर्स्ट कैटेगरी है हमारी A. So यहाँ पर जो है A item which consist of small quantity but high value. इसकी क्वांटिटी बहुत कम बिकती है मार्केट में मगर इसका प्राइस ज़्यादा होता है. सेकेंड कैटेगरी जो है बी ट्रेड की जाती है जो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. और थर्ड कैटेगरी जो होती है सी कैटेगरी में आ जाते हैं जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसका प्राइस क्या होता है कम. बी जो है हमारा एवरेज आ जाता है. ए जो है बहुत कम बिकती है मगर उसका प्राइस क्या होता है काफ़ी हाई होता है. तो इस तरह से जो है इसको कैटेगरी वाइज जो है बाइफोकेट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. एबीसी का प्रोसीजर एक्चुअल क्या होता है? फर्स्ट द प्रोसीजर ऑफ द एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री इज फर्स्ट फाइंड आउट द फ्यूचर यूज ऑफ ईच आइटम. पहले देखा जाता है कि कौन सा मटेरियल फ्यूचर में कितना यूज होगा, मोर, एवरेज और लेस, ठीक है. फिर उसका डिसाइड किया जाता है प्राइस कि जिसका जितना डिमांड होगा ऑफकोर्स उसका प्राइस उतना ज़्यादा होगा, जितनी नीड होगी जितना ऑफकोर्स कॉस्ट भी मैटर करता है. फाइंड आउट द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. हर एक आइटम का जो है प्रोडक्ट किया जाता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ऐसे बहुत सारी ड्रग्स कंपनी है, फार्मा कंपनी है जिनकी कुछ दवाइयाँ बहुत सस्ती भी होती है, कुछ एवरेज प्राइस पे मिलती है और कुछ बहुत महंगी भी होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड. कब कुछ चीज़ें जो है हमको इमीडिएटली लगती है, कुछ ज़्यादा अगर पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब है तो उसका ऑफकोर्स प्राइस हाई होता है. नॉर्मल आप देख लीजिए क्रोसिन वगैरह हमको डेली जो नॉर्मल मिलती है तो वो लेस प्राइस में मिलती है ज़्यादा क्वांटिटी में. और एवरेज जो है मार्केट में जो बी एनालिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी मिलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट और यू कैन से द नीड ऑफ द कस्टमर दे आर एनालाइज द प्रोडक्ट. Then starting with the highest total cost, arrange the different item in order to their total cost. Total cost के हिसाब से जो है इसको क्लासीफाई करते हैं. Express the unit of each item in the percentage. इसको परसेंटेज के हिसाब से टोटल कॉस्ट में क्लासीफाई किया जाता है. Calculate the total cost of each item as a percentage of total cost of all item and classify the item. I'm just giving you the example. See how to calculate the total cost into the percentage. Suppose there are the 3 category A, B, C. ठीक है. सपोज टोटल परसेंटेज है 100 आइटम्स, उसमें से 10% ए है प्रोडक्शन में, 30% बी का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और 60% सी का. मगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो हम जो कमाते हैं उसका 75% कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है हमारा, तो 75% जो है ये 10%, मतलब ये इतना महंगा है कि मुझे 75% कॉस्ट मेरा इसी में निकल जाता है पैसा. 30% के लिए सपोज 20% कॉस्ट लगता है और ये जो 60% जो मेरा माल बन रहा है उसके लिए सिर्फ मेरा खर्चा कितना है 5%. सो इस तरह से जो है एबीसी एनालिसिस होता है. ये रिड्यूसिंग में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है. तो ऑफकोर्स इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज कॉस्ट एंड आइटम और यू कैन से द क्वांटिटी. देन एबीसी प्रोसीजर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ विच वी कैन ऑफकोर्स अंडरस्टैंड विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हाउ इट शुड बी. So it becomes clear that A are more valuable, therefore they require the inventory control. यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत है A में बिकॉज ये महंगा प्रोडक्ट है हमारा. B इज़ अ मॉडरेट वन ऑफकोर्स एंड C इन द लार्ज इन नंबर. सो यहाँ पर थोड़ा हमको लो वैल्यू पे जाना है. हम इसको डायग्राम के थ्रू जो है इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि एबीसी एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है. इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज मिनिमाइज बिकॉज द क्लोज कंट्रोल ओवर ए.
ठीक है। यहाँ पर जो है हमको इन्वेस्टमेंट ए में कम किया जाता है क्योंकि ऑफकोर्स ये मोर रिस्की है, यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगता है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि हमारे पास जब माल कम रहता है तो हमको बार बार ऑर्डर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमको स्टोरिंग भी कम करना पड़ता है, तो ये दोनों कॉस्ट हमारे यहाँ कम हो जाते हैं। टेक्निक कट डाउन एंड द कॉस्ट ऑफ सिस्टम, यहाँ पर हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि हम किस तरह से हमारा कॉस्ट कट करें। Then fourth is fulfill with the objective of inventory control and help in the maintenance of the high stock rate. So this is the graphical representation. See inverse relation है, यहाँ पर number of items देखिए A कम है B और C, but cost देखिए यहाँ पर इसका different है. So it is a type of a curve which is going in the upward direction. Now the next is stock record card. Now what is the stock record card? Here the bin card is placed at the bin in the store and the storekeeper should have same record of the stock with him. यहाँ पर जो है स्टोर कीपर जो अपने पास जो रिकॉर्ड रखता है, बिन कार्ड तो जो है हमारे स्टॉक में ही रहता है, लेकिन स्टोर कीपर खुद अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है और उस जिसमें वो रिकॉर्ड रखता है उसको स्टोर रिकॉर्ड कार्ड कहा जाता है। ये देखिए इसका परफॉर्मा है कि हमने कितना ऑर्डर दिया है, हमारे पास कितना ऑर्डर है और रिजर्व कितना है, मतलब हमने अलोकेट कितना किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, यहाँ पर जो है कैलकुलेट किया जाता है आपका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल और EOQ लेवल। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल। मटीरियल जो है क्लासिफाई किया जाता है 5 कैटेगरीज में एंड फर्स्ट कैटेगरी इज फास्ट मूविंग मटीरियल। दिस मटीरियल विच आर हैविंग हायर रेट टर्नओवर। ठीक है, इन दिस केस द स्टॉक शुड बी मेंटेन एट हायर लेवल। यहाँ पर फास्ट मूविंग जो ज़्यादा बिकता है और ज़्यादा उसका डिमांड है मार्केट में। सेकंड स्लो मूविंग आइटम विच हैव लो टर्नओवर रेट एंड लोअर रेट लेवल ऑफ स्टॉक, ज़्यादा जो मार्केट में नहीं बिकता और उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, सो इट इज स्लो मूविंग मटीरियल। ओके, द थर्ड इज अ डोरमेंट मटीरियल। दिस मटीरियल आर फाउंड टू हैव नो रिकरिंग यूज, मतलब ऐसा जो वन टाइम यूज हो और बाद में इसका डिमांड नहीं होता, बट इट मे बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर एंड द डिसीजन अबाउट दिस लेवल ऑफ द स्टॉक शुड बी टेकन जुडिशरी with the consultation with the cost accountant. So यहाँ पर जो है प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर जो है कॉस्ट अकाउंटेंट से कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं कि वदर हम जो डोरमेंट मटीरियल को फ्यूचर में बनाएं या ना बनाएं। Obsolete material, such material may not be used in future due to one or more reasons such as change in the product design. ये जो मटीरियल है आपका यूज नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो आउटडेटेड हो जाते हैं, खासकर फैशन इंडस्ट्रीज में जो है ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो एक बार जो हो जाता है ये मार्केट से प्रोडक्ट चला जाता है बिकॉज इसको न्यू प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाता है इसका। सो सच मटीरियल हैज़ टू बी डिस्पोज ऑफ, इसकी अब तब हमें ज़रूरत नहीं रहती। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज मटीरियल विद एवरेज टर्नओवर। सो द टर्नओवर रेट ऑफ दिस मटीरियल में बी एवरेज और ऑल द मटीरियल टेकन टुगेदर। यहाँ पर जो है एवरेज जिसका टर्नओवर होता है उसको मटीरियल विद एवरेज टर्नओवर कहते हैं। Now I have to discuss with some ratios with you. Here first ratio is inventory turnover ratio. यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस रेशो, एक्चुअली ये रेशो जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एवरेज इन्वेंट्री। सो इन दोनों के रेशो को कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नाउ एवरेज स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दैट इज योर एवरेज स्टॉक। ठीक है, देन नेक्स्ट कि कितना हायर रेशो जो है इंडिकेट करता है फास्ट मूविंग और लो रेशो इंडिकेट करता है लॉकअप वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और इसको अगर हम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला है डेज ड्यूरिंग द पीरियड एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दिस रेशो शो द पीरियड फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, मतलब हमारे पास कितने दिन तक हमारा स्टॉक रहेगा। एंड दिस पीरियड शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। शॉर्ट द पीरियड बेटर इज द मैनेजमेंट। ठीक है, सो टोटल इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज फिनिश गुड्स, ये जो है हम इन्वेस्टमेंट स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए ये रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट रेशियो इज इनपुट रेशियो।
an input output ratio. This is the relationship between the finished goods of and material consumed. मतलब हमारे पास कितना मटेरियल रेडी हुआ, आउटपुट मीन्स फिनिश गुड, इनपुट मतलब हमारा रॉ मटेरियल. सो इन दोनों का रेशो है. ये रेशो जो है कैलकुलेट किया जाता है by the applying the following formula: standard cost of actual cost and standard cost of standard quantity also. ठीक है. सो ये जो रेशो है मेरा, दिस रेशो फैसिलिटेट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, कि कितना हमारा जो है फर्म कैसे परफॉर्म कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू नो वेदर द यूज ऑफ मटीरियल इज फेवरेबल और इनफेवरेबल. मतलब हमने अगर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सोची, एक्चुअल कितना यूज हो रहा है और स्टैंडर्ड हमने कितना सोचा था. तो अगर ऑफकोर्स फेवरेबल तब होगा जब हमारा रेशो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इट शुड बी नेगेटिव. So it will be adverse. So these are the ratios which I have to discuss. And the next ratio of slow moving item to the total inventory. स्लो मूविंग आइटम जो है टोटल इन्वेंट्री का किस तरह से इसको किया जाता है, इसका फॉर्मूला है स्लो मूविंग स्टोर एंड टोटल इन्वेंट्री. ये रेशो जो है हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द स्लो मूविंग आइटम. हायर रेशो इंडिकेट देयर आर मेनी स्लो मूविंग आइटम्स, therefore capital is lock up and management should take the immediate step to write out this situation. The next is, यहाँ पर आपको मैं आपका इसका इंटरप्रिटेशन बता दूं कि ये रेशो हमसे क्या कहता है. हायर रेशो इंडिकेट फास्ट मूविंग, लो रेशो इंडिकेट स्लो मूविंग, एंड द स्पीड विथ विच द स्टॉक इज कंज्यूम, बताता है कि किस तरह से स्टॉक हमारा कंजम्पशन हो रहा है इसका. एंड टू लो रेशो इंडिकेट एक्सेसिव इन्वेंट्री लेवल. एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? The management take the necessary corrective action because preventing understocking fast moving stock. अगर fast moving stock होता है तो of course हमको stock इसका अच्छे ज़्यादा हायर लेवल पर मेंटेन करना पड़ता है. यहाँ पर हमको स्लो मूविंग इस पे जो है हमको ओवर स्टॉकिंग कम करना है, ज़्यादा स्टॉक नहीं रखने की ज़रूरत है जो स्लो मूविंग आइटम्स है. और वेदर टू रिटेन और स्क्रैप द डोरमेंट स्टॉक, ये भी हमें ध्यान देना है. और वेदर टू डिस्कार्ड द absolute material. So these are what I want to discuss in the material documentation chapter. Each and every part I elaborate you properly. I also give the performa, I also give the types of the ratios. Please learn it properly and please concentrate it, because the next chapter this chapter is based on the calculation of ratio. If you understand this, please write in a comment box. If you have any doubt, please write in a comment box. Thank you so much. Have a good day.